Hello friends, myself Nilesh Patel. I am from Pankaj Global Public School, Chopra. So today I am going to discuss the chapter number 4 for the 10th class, carbon and its compound. So today discussing the topic properties of ethanoic acid. Okay. So ethanoic acid is commonly called as the acetic acid. Okay. So ethanoic acid is commonly called as acetic acid. Okay. Second one is I am write down the molecular formula. I am write down the molecular formula of the ethanoic acid. The molecular formula of the ethanoic acid is C2H4O2. Okay. First one, chemical formula. Okay. Chemical formula of the ethanoic acid is the CH3COOH. This is the chemical formula of the ethanoic acid. And third one is the structure. Structure of ethanoic acid. So structure of ethanoic acid is CH3COOH. This is structure of the ethanoic acid. Okay. So ethanoic acid structure contains this acetic group. This is the acetic group. So ethanoic acid is a belong to the acetic group. So this acetic group called as the carboxylic acid. Okay. Carboxylic acid. So जो ethanoic acid is belong करता है कहाँ से? एसिडिक ग्रुप से. तो एसिडिक ग्रुप इसके अंदर जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंस है वो है आपका दिस वन एसिडिक बेसिस जो मैंने यहाँ पे डायग्राम की. इस एसिडिक बेसिस का नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके. So second is this acidic group मतलब कि carboxylic acid is also called as the organic acid. It's also called as organic acid. तो आपको पता होना चाहिए कि इसे ऑर्गेनिक एसिड भी क्यों कहा जाता है. तो ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मिनरल, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक बेस किसे कहा जाता है. सो ऑर्गेनिक मतलब कि क्या? ऑर्गेनिक मींस जिस कंटेंट के अंदर कार्बन प्रेजेंस होता हो, जिस कंपाउंड के अंदर, जिस मटेरियल के अंदर कार्बन प्रेजेंस होता है उसे कहो क्या? ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक एसिड. ओके. सो दिस इज ऑर्गेनिक एसिड. व्हाई? बिकॉज़ इट्स एसिड इन विच प्रेजेंस ऑफ द कार्बन एटम. ओके. इन विच द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन एटम. सो इट्स कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड. इट्स आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड. मतलब कि क्या? जो इथेनॉइक एसिड है बिलोंग करता है एसिडिक ग्रुप. कौन से एसिडिक ग्रुप से? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस इथेनॉइक एसिड के अंदर प्रेजेंस होता है. ओके. स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. और कार्बोक्सिलिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड. व्हाई द ऑर्गेनिक एसिड इज कॉल्ड एज? बिकॉज़ देयर आर प्रेजेंट द कार्बन ग्रुप. ओके. सो सेकंड टॉपिक इज द इथेनॉइक एसिड. द प्योर इथेनॉइक एसिड जो होगा आपका, जो प्योर इथेनॉइक एसिड, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 219 केल्विन. दिस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इथेनॉइक एसिड इज 219 केल्विन. ओके. सो जब वेंचर या कोल्ड क्लाइमेट होता है तो जो इथेनॉइक एसिड होता है, इथेनॉइक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लेशियल एसिडिक एसिड व्हेन, जब क्लाइमेट चेंज होगा, वेंचर या कोल्ड क्लाइमेट जब आता है तब इथेनॉइक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लेशियल एसिडिक एसिड. दिस गिव्स राइज टू द ग्लेशियल एसिडिक एसिड. ओके. So there are the properties of the ethanoic acid and carboxylic acid. It's a weak acid. Okay. It's a weak acid. Then comparison of the HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, and HMAC means nitric acid. The three acid is a inorganic acid. HCl, H2SO4, and HNO3. Okay. This is a hydrochloric acid, sulfuric acid, and the nitric acid. Okay. This belongs to the inorganic acid. Inorganic acid. Why? जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक मींस क्या? जिसके अंदर कंटेंट प्रेजेंस होगा कार्बन. सो H2SO4, HCl and H2O3 के अंदर जो भी प्रेजेंस है यहाँ पे कार्बन नहीं है. ओके. सो यहाँ पे कार्बन नहीं, Cl मींस क्लोरीन एटम. सो यहाँ कार्बन प्रेजेंट है तो इट बिलोंग टू द इनऑर्गेनिक एसिड. ओके. सो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हुई ऑफ इथेनॉइक एसिड. सेकंड
reaction of ethanol, sorry ethanoic acid. So first reaction is esterification reaction. I am write down the structure of the ester. Okay, so ester structure is the R C double bond O O R. R means ये तो CH2 हो सकता है as well as CH3 हो सकता है. Same thing of this R, ये तो CH3 हो गया CH2. Okay, this is structure of the ester structure is ester. Okay, so first of all I am write down the content of the esterification reaction. So esterification reaction is the presence of the two reaction molecules. First is the ethanoic acid. So I am write down the structure of ethanoic acid. CH3 C double bond O OH. And second reactant molecule there are present esterification reaction is ethanols. Okay, so ethanol is the CH3 CH2 OH. Okay, the presence of acid catalytic formation of ester. So आपको ester फॉर्म करना है इसके अंदर. ओके, सेम थिंग आपको यूज करनी है. आपको क्या यूज करना है, मतलब क्या करना है इस रिएक्शन के अंदर मैं आपको बताता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ द esterification reaction. मैकेनिज्म. ओके, सो मैकेनिज्म इन व्हिच क्या करना है मैं आपको बताता हूं. फर्स्ट राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ ethanoic acid CH3OH. I am write down this OH this form. Okay, and second one is reactant molecule is the ethanol. So I am उसको क्या करो उल्टा लिखूंगा. OH फर्स्ट लिखूंगा, फिर CH2 राइट डाउन करूंगा, फिर लास्ट में CH3 करूंगा. सो esterification रिएक्शन के अंदर आप esterification रिएक्शन आइडेंटिफाई कैसे आइडेंटिफाई करोगे. कुछ आइडेंटिफाई करने की आपको तकलीफ नहीं होता. आपको अगर किसी रिएक्शन एग्जामिनेशन के अंदर दिया जाता है, एग्जाम के अंदर अगर आता है स्ट्रक्चर या कोई रिएक्शन दिया जाती है, अगर इसी रिएक्शन के अंदर इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल आपको अगर नजर आता है तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि दिस रिएक्शन इज द esterification reaction. ओके, सो esterification reaction के अंदर क्या होता है, जो आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा एस्टर और esterification reaction के अंदर इथेनॉइक एसिड प्लस इथेनॉल का, तो इस दोनों के अंदर से आपको लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या लॉस करना है वाटर मॉलिक्यूल. esterification के रिएक्शन के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लॉस ऑफ H2. सो H2 कौन सा लॉस करोगे हम, दिस वन H2 मॉलिक्यूल, दिस H, दिस H, मतलब H2 एंड दिस O, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है आपको, लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल. सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप सेकंड, जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल लॉस करते हो इस रिएक्शन के अंदर से, तो क्या होगा, चार्ज फॉर्म होगी. इसके ऊपर चार्ज फॉर्म होगा, फिर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O हो जाएगा माइनस. क्यों माइनस होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में चार्ज होता है प्लस. प्लस चार्ज किससे कनेक्ट होता है, कभी नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट से. नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज होगा प्रैक्टिस ऑक्सीजन के ऊपर. और सेम थिंग दिस इथेनॉल के सो इथेनॉल के अंदर जो हाइड्रोजन स्पीशीज थी, मतलब कि OH स्पीशीज जैसे ही लॉस होगी, बेस स्पीशीज, बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. अगर नेगेटिव चार्ज इससे कनेक्टेड है, इससे बॉन्डेड है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, प्लस चार्ज होना चाहिए. ओके, तो अगर ये रिमूव होता तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज. जैसे वो इसके रिमूव हो वैसे इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, मतलब इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज फॉर्म हो, फिर में CH3 जिस किसी एलिमेंट के अंदर, किसी एलिमेंट के ऊपर, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर चार्ज फॉर्म होता है प्लस, तो उसके क्या कटा है, प्लस चार्ज को क्या बोलते हो, कटा है. नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं अनायन. ओके, सो अभी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज फॉर्म हुआ, तो ये होगा आपका कार्बन कटायन कहोगे, हम इसको क्या कहोगे, कार्बो कटायन. ओके, तो क्या होगा थर्ड स्टेप के अंदर, स्टेप थर्ड के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होगा, खाली प्रोडक्ट फॉर्म करना है. तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, सिंपल होगा. क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंटरेक्शन दिखाएगा प्लस चार्ज के ऊपर, प्लस चार्ज इंटरेक्शन दिखाएगा नेगेटिव चार्ज के ऊपर. दोनों की इंटरेक्शन दिखाने के बाद क्या होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा. किसके अंदर, इन ऑक्सीजन एंड कार्बन के और ऑक्सीजन के अंदर न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा. तो कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा आपका थर्ड स्टेप के अंदर, इमेजिनरी राइट डाउन करूंगा CH3. ओके, दिस C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा आपका O माइनस था, लेकिन इंटरेक्शन हुआ प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज. इस CH2 के और ऑक्सीजन की इंग्लिश फॉर्मेशन हुआ न्यू बॉन्ड, तो मैं न्यू बॉन्ड फॉर्म करूंगा और CH2 CH3 एज इट इज. तो ये जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा आपका एस्टर. ओके, वेरीफाई कर सकते हैं. ये प्रोडक्ट होगा आपका एस्टर. तो esterification रिएक्शन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, आपको दिमाग मरी नहीं करनी, आपको खाली आइडेंटिफाई करना है. कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपको अगर किसी एग्जाम के अंदर ये इथेनॉइक एसिड प्लस इथेनॉल दिया है और बेस कैटालिस्ट अगर दिया है, तो समझ लेना आपको कि esterification रिएक्शन आपको राइट डाउन करनी है. तो esterification रिएक्शन में 3 स्टेप मैकेनिज्म मैंने
फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके वाटर मॉलिक्यूल लॉस किया तो क्या होगा, थर्ड सेकंड स्टेप में चार्ज फॉर्म होगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म करना है और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, मतलब कार्बन कटायन फॉर्म हुआ। कार्बन कटायन फॉर्म होने के बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, इंटरेक्शन निकल के मतलब कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के अंदर न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, जैसे ही न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा वैसे आपका एस्टर आर फॉर्म होगा। ओके, तो इस टॉपिक के अंदर आपको कोई क्यूरियोसिटी से कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज सेंड मी, आपकी कमेंट सेक्शन में आप आपकी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करके आपको सेंड करूंगा। ओके, सो जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इथेनॉइक एसिड की, तो नेक्स्ट रिएक्शन आप अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, सो बाय।